Hello students, I am Om Prakash Kumar. Welcome to you in biology class. Today the topic is respiration in plants. As you know that plants cells and plant animal cells are different, and plants and animals both are different to each others. So respiration in plants completely different from respiration in animals. In plants, the respirations, that means exchange of gases, respiratory gases, exchange of respiratory gases. Respiratory gases means CO2 and O2. These are called the respiratory gases. The exchange of respiratory gases in plants be completely different from animals. In animals, the respirations occurs as a single unit, a single respiratory through a single respiratory systems. That means the oxygens intake by lungs in animals through nose and release the CO2 by lungs through nose, and blood circulates the oxygen and CO2 throughout the body in animals. But in plants, the exchange of gases CO2 and O2 takes place in leaf leaves, also in stems and also in roots. Exchange of gases प्लांट्स में डिफरेंट होता है, जैसे रूट में अलग होता है, स्टेम में अलग होती है अलग तरीके से, और रूट में वह अलग तरीके से होती है, यह एक सिंगल यूनिट की तरह काम नहीं करती. और रेस्पिरेशंस also in plant is a slow process, but in animal is a fast process, because plants are a static organisms. They require less amount of energy, but animals require more amount of energy, and animal is a motile organisms, so it requires more amount of energy. So the respiration in plants and animals completely different from each other. Respiration कहने का मतलब यहाँ पर breathing, that means exchange of gases, completely different from each others. Now respiration in plants. Plant gets oxygen by diffusion process and also release the CO2 through diffusion process. Diffusions of CO2 and O2 in plants occurs at different levels. That means roots, stem and leaves of plants. Diffusions taken place. Now come on the topics. Respiration in root. Respiration in root. प्लांट के रूट में जो रेस्पिरेशंस होती है, उस रेस्पिरेशंस को हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेट करते हैं. यह रूट्स का स्ट्रक्चर है सिंपल. ये रूट्स, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये ग्राउंड लेवल है, यह अर्थ का लेवल्स है, उसके नीचे रूट्स रहती है, ये सॉइल पार्टिकल्स है. सॉइल पार्टिकल्स के बीच में सम स्पेसेस प्रेजेंट रहते हैं, इसको एयर स्पेस कहते हैं. उसमें एयर भी प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन CO2 बोथ, एंड अदर गैसेस भी प्रेजेंट रहती है. यह प्लांट्स के रूट के टिप्स पर रूट हेयर होती है, छोटे छोटे सिंगल सेल की यह आउटग्रोथ होती है, सिंगल सेल वाली आउटग्रोथ, इसको रूट हेयर्स कहते हैं. यह रूट हेयर्स के थ्रू जो है ना गैस का एक्सचेंज होता है. सॉइल पार्टिकल के स्पेस के बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन के अमाउंट ज़्यादा है, एंड इस प्लांट सेल के अंदर और रूट हेयर्स में
ऑक्सीजन के अमाउंट कम है, तो यहाँ से ऑक्सीजन इस एयर स्पेस से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके चला जाता है इस रूट हेयर्स में। जब यहाँ पे जब ऑक्सीजन चली जाती है तो यहाँ से फिर CO2, क्योंकि CO2 का अमाउंट इस रूट हेयर्स में ज़्यादा है और यहाँ एयर स्पेस में उसका अमाउंट कम है। Then CO2 also diffuse from root hair to the air space between the soil particles, and oxygen diffuses from air space to the root hairs. Respiration in roots occurs by diffusion of CO2 and O2 through root hairs. तो रूट में जो रेस्पिरेशन होती है वह रूट हेयर के थ्रू होती है, और जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं वहाँ से वह ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाता है रूट हेयर्स में, एंड रूट हेयर से CO2 डिफ्यूज कर जाती है इस एयर स्पेस में। तो यहाँ पर रूट में रेस्पिरेशन थ्रू रूट हेयर्स। लेकिन जब इस सॉइल पार्टिकल सॉइल लेवल्स के ऊपर, इस ग्राउंड लेवल पर जब बहुत ज़्यादा दिनों तक वाटर जब जमा हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो उस कंडीशंस में वाटर बहुत दिनों तक वहाँ पे जमा हो जाती है, तो वाटर का धीरे धीरे वह वाटर परकोलेट होकर के सॉइल पार्टिकल्स के बीच में चला जाता है, और वाटर की डेंसिटी एयर की तुलना में ज़्यादा होती है। तो या जो है ना वाटर उस एयर स्पेस को कवर कर लेता है और एयर वहाँ से रिमूव हो जाती है, तो उस कंडीशंस में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहता है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। तो उस कंडीशंस में जब वाटर लॉगिंग हो जाती है, बहुत दिनों तक वाटर जमा रह जाती है सॉइल के ऊपर, महीने 2 महीने तक, तो उस कंडीशंस में रूट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में पढ़े हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशंस जब प्लांट में होती है तो उसमें इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, एंड इथाइल अल्कोहल इज पॉइजनस फॉर प्लांट सेल्स। उस कंडीशंस में, वाटर लॉगिंग कंडीशंस में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। इथाइल अल्कोहल प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाता है और प्लांट सेल का फाइनली डेथ हो जाता है, और प्लांट उस कंडीशंस में वो मुरझा जाता है, ड्राई हो जाता है। तो वाटर लॉगिंग किल द प्लांट्स। नाउ रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। स्टेम्स में रेस्पिरेशन सिस्टम, 2 तरह के स्टेम्स के बारे में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। नंबर 1 हर्बेशियस प्लांट्स एंड वुडी प्लांट्स। या 2 तरह के प्लांट्स हैं, हर्बेशियस प्लांट्स एंड वुडी प्लांट्स। हर्बेशियस प्लांट्स वैसे प्लांट्स जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, हर्ब कैटेगरी में आते हैं, उसको हर्बेशियस प्लांट्स कहते हैं। जैसे कि राइस की प्लांट्स, वीट की प्लांट्स, ठीक, कुछ वीट्स होते हैं, बथुआ की प्लांट्स, सब हर्बेशियस प्लांट्स हैं। उस प्लांट्स के जो स्टेम्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, ग्रीन स्टेम्स होता है, और ग्रीन स्टेम्स पर स्टोमाटा होती है, और उसी स्टोमाटा के थ्रू CO2 एंड O2 का एक्सचेंज होता है। बाहर अमाउंट ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, अंदर ऑक्सीजन के अमाउंट कम होता है, और एक्सचेंज हो जाती है। बाहर से अंदर की तरफ ऑक्सीजन चले जाते हैं स्टोमाटा के थ्रू, और CO2 सेल के अंदर इसका अमाउंट मोर अमाउंट है, तो यहाँ से वह बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में वह रिलीज हो जाती है। तो इन हर्बेशियस प्लांट एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 थ्रू स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन ग्रीन स्टेम्स। बट इन वुडी प्लांट्स में जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जैसे आम के प्लांट्स, शीशम के प्लांट्स, नीम के प्लांट्स, ये सब जो प्लांट्स होते हैं वुडी प्लांट्स कहा जाता है। उनकी वुडी स्टेम्स जो होते हैं, उनकी बाहर वाली जो एपिडर्मिस है वह डेड हो जाती है, और उसके हम लोग बार्क कहते हैं। इस बाहर वाली वुडी स्टेम्स को हम लोग बार्क कहते हैं, बार्क। इस बार्क में डेड हो जाने के चलते इसमें स्टोमाटा प्रेजेंस नहीं रहती है। जब स्टोमाटा प्रेजेंस नहीं रहती है तो ये इसमें गैस के एक्सचेंज के लिए कुछ सेल्स जो है ना लूजली अरेंज हो जाते हैं, और बाहर की तरफ वो जो है ना आउटग्रोथ उनकी हो जाती है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स में लूजली अरेंज सेल्स हैं,
और उसी के थ्रू ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज हो जाता है. तो इन woody plants respirations occurs through lenticels. What is the lenticels? A small area of bark. This is the outer covering of the stem is called bark. A small area of bark in woody stem where the cells are loosely packed is called lenticel. This is the lenticels. So in woody plants of a stem of woody plants, the exchange of gases takes place through lenticels, but in herbaceous plants, exchange of gases takes place through the stomata. रेस्पिरेशन इन लिप्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं लिप्स में बहुत सारे स्टोमाटा होते हैं, मिलियन नंबर में स्टोमाटा लिप के लोअर सरफेस पर. यदि डाइकॉट की लिप है तो लोअर सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं स्टोमाटा. यदि मोनोकॉट की लिप है तो अपर एंड लोअर बोथ सरफेस पर वो स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है. लिप्स में स्टोमाटा होती है और स्टोमाटा के थ्रू ही एक्सचेंज हो जाता है CO2 एंड O2 का. सो रेस्पिरेशन इन लिप्स अकर्स थ्रू स्टोमाटा. रेस्पिरेशन इन स्टेम्स इन वुडी प्लांट्स ऑफ stems of woody plants occurs through lenticels. Stems of herbaceous plants occurs through stomata, and stem and the roots, the respiration and the exchange of gases takes place through the root hair. So this is all about the respiration in plants. In the next class we will study about the respiration in animals. Okay, thank you for watching this video.